کا آئینی حق ہے کہ جمہوری روایات کے حوالے سے مقامی حکومتوں کی آئے دن تحلیل اور ہر دفعہ نئی قانون سازی سے مقامی حکومتوں کا تعطل کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، عوام میں مایوسی اور ناتعلقی بڑھنے کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے قانون سازی کرنے وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت قائم رکھا جائے۔ آئے روز کی قانون سازی کا رواج کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر کے بہتر نتائج پراپت کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نئی قانون سازی کے بارے میں مندرجہ ذیل امور کو نئے قانون میں شامل کروانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، بنیادی یونٹ یونین کونسل کو وہ کہ اس کا نام بدلا جا سکتا ہے مگر آبادی کی بنیاد 20,000 افراد کے نفوذ سے زائد نہ ہو۔ نمبر 2، یونین کونسل ضلعی سطح پر قائم شہری اور دیہی حکومتوں کے نمائندگی میں وسعت اور گہرائی۔ مختلف مقامی حکومتوں میں آبادی کے سبھی حصوں کو بالخصوص نظر انداز کیے رکھے گئے افراد کی نمائندگی کو بھرپور اور مؤثر بنانا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی سے یہ تعداد بہت کم ہے اور بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری سفارشات یہ ہے کہ یونین کونسلوں میں سب سے نچلے یونٹ میں خواتین کی نمائندگی کم از کم 40% رکھی جائے اور انتخابات یا رائے دہی سے منعقد ہونے چاہیے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شہریوں کی شراکت کا سوال ہمیشہ سے بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مقامی حکومتیں بنیادی طور پر شہریوں کے روزمرہ کے مسائل کو ڈیل کرتی ہیں۔ اس طرح حکمرانی میں اگر پینل کا اعلان کیا گیا تھا جنہوں نے لوکل گورنمنٹ کے فرائض میں حصہ ڈالنا تھا، مگر ابھی تک حقیقی طور پر اس پر کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں عدم موجودگی اور وہ سچ کے ہیں اور متعلقہ اسمبلی کمیٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارا موقف براہ راست سنیں اور ان کو تسلیم کیا جائے۔ جو یہاں پہ ہمارے مقررین بیٹھے ہیں وہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں گے، مزید تشریح بھی کریں گے ہماری آج کی نشست کا، لیکن میں ان لوگوں کے نام لینا چاہتی ہوں جنہوں نے مشترکہ طور پر آج کی اس پریس اسٹیٹمنٹ کو تیار کرنے میں اپنی شمولیت بتائی ہے۔ زاہد صاحب سندھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ہیں، ان کا اس میں اشتراک ہے۔ میرا نام بشرا مالک ہے، میرا تعلق ایک عورتوں کی سماجی تنظیم ویمن اینڈ اسٹرگل ہے۔ سلمان عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا موقف ہے، ان کی تنظیم آئیڈیا کا موقف ہے اس کے اندر۔ ملک الطاف صاحب، عرفان مفتی صاحب، ذاکر شاہد ساؤتھ ایشیا پارٹنر، ندیم صاحب سہار آرگنائزیشن ہے، شعور فارم کے اندر شامل ہیں، راجہ محمود بلدیات، ساجد علی شہزاد، سنگت ہمارے ان سفارشات اور مطالبات کو انڈورس کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گی سلمان عامر صاحب سے کہ اوکے زاہد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پہلے اس بات کو ذرا سا اور آگے وضاحت کریں اور پھر ہم ایسے اسمبلی کے اندر کہ اچھا قانون بنے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ قانون کے ارتقاء قانون سازی کے لیے ارتقاء کے طور پر اس کو جواز نہ بنایا جائے کہ پھر نیا قانون آئے، پھر منظور کیا جائے، پھر اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشنز ہو، پھر اس کے اوپر انتخابات ہو، اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اور پھر ہم اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ ہر حکومت جو آتی ہے برسک وہ آ کے قانون کو بھی بدل دیتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہماری تاریخ پنجاب کی کیا کہتی ہے کہ جو 2001 کا مشرف کا قانون تھا اس کی منسوخی جو تھی عملی طور پر وہ 1 جنوری 2017 کو ہوئی تھی۔ 2013 میں نیا قانون آ گیا، 2015 میں اس کے تحت الیکشن ہو گئے تھے، مگر عمل درآمد جو ہے وہ 1 جنوری 2017 کو ہوا تھا۔ یعنی مشرف کا قانون جس کے خلاف سارے تھے اس کو قائم رکھا گیا تھا یہاں پر، اس کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ایک اتفاق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں صورتحال بہت خراب ہے۔ پنجاب کا صوبائی جو فائنانس کمیشن ہے اس کا ایوارڈ جاری نہیں ہوا۔ پنجاب میں ہر میونسپل کمیٹی، ہر میونسپل کارپوریشن، ہر لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن قرضے کے اوپر چل رہا ہے۔ اور ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر ایک تحریک انتباہ پیش کی ہے جناب احمد اقبال صاحب نے کہ جو میونسپل کمیٹیاں ہیں اس کا جو ٹیرف ہے وہ کمرشل کیوں ہے، اس کی وجہ سے ان کے بل جو ہیں وہ قابل ادائیگی نہیں ہے۔ تو بجلی کے بل جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ کاٹ دی، تو اسٹریٹ لائٹس کے اوپر کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کا ٹیرف کمرشل ہے، وہ کہتے ہیں یہ پیسے نہیں ہیں، صرف تنخواہوں کے پیسے آ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی اس ہفتے سے
पंजाब लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन जो है उन्होंने कल मुझे बताया कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं कि बहुत सी म्यूनसिपल कमेटियों के मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं मिली। तो इसको रेगुलराइज करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त नई मुफ्ती हुकूमत है और वो कई दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कानून वज़ीर आला है, तो उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं, इसको रेगुलराइज करें, पंजाब फाइनेंस कमीशन बनाएं, रिवार्ड जारी करें और ये मालियाती बहरान जो है उसको दूर करें और इंतजामी तौर पर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। इससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा, रिलीफ मिलेगी। थैंक यू भाई। कहा था कि 2015 में आखिरी इलेक्शन हुए लोकल गवर्नमेंट, अब 2024 है, यानी आप अंदाजा लगाइए कि 9 साल गुजर गए हैं और यहाँ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। तो पहला तो डिमांड ये है कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत के इलेक्शन और सूबाई हुकूमत के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से एक तसलसल कायम किया जाए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का, और ये जो लंबा उसके अंदर गैप आता है ये खत्म होना चाहिए और फौरी तौर पर एक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। और एक ऐसे मौके पे जब बाकी 3 सूबों के इलेक्शन हो गए, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन ना करवाना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। दूसरी हमारा मुतालबा ये रहा है, जैसे कि भाई साहब ने भी कहा है कि निज़ाम लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसके साथ मजाक बंद किया जाए। इतनी अमेंडमेंट, इतनी तरामीम और इतनी कानून साजी के नाम पर आप इलेक्शन ना करवाएं और सिस्टम को ना बनाएं, ये सिस्टम नहीं कर सकते। सिस्टम को तसलसल दे, सिस्टम में एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा करे और जो भी कानून बनाना है उसको मुस्तकिल हैसियत भी दे, वहाँ सवाए चंद छोटी मोटी अमेंडमेंट के अलावा वो भी करने की जरूरत है। और बुनियादी मसला ये है कि आइंदा जो आर्टिकल 140 ए है वो तमाम सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि इनको सियासी, इंतजामी और माली इख्तियार दिए जाएं। हमें कोई कमजोर किस्म की, अपाहिज किस्म की, मखलूस किस्म की लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट चाहिए जो कि मुख्तार भी हो, जिसके पास वसाइल भी हो और जिसके पास इख्तियार भी हो, और उसमें काउंसलर्स तक इख्तियार, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, मिनॉरिटीज के लोग भी शामिल है, उनको इख्तियार दिए जाए। और तीसरी जो बात वो ये है कि जो मुतबादल निज़ाम है वो खत्म किया जाए। जितने भी लोकल गवर्नमेंट के पैरेलल निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है या निज़ाम को ब्यूरोक्रेसी की मदद से चलाने की कोशिश की जा रही है या एमपीए एमएलए के जरिए निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है, हम इन इक़दामात की हौसला नहीं करते हैं और इसकी हौसला अफजाई नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है ये इसी के काम है कि लोकल इलाकों की जितनी भी डेवलपमेंट है वो इनके जरिए किए जाए और फिर इसको मजबूत बनाया जाए। और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त आपको गवर्नेंस का क्राइसिस नजर आ रहा है, लोगों में बेचैनी है, शराबियत है, बायजीती है, गैर यकीनी सूरत हाल है, लोग अपने बुनियादी मसलों के हवाले से नाला है। इसकी भी बड़ी वजह यह है कि आपका लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता, और जिन सूबों में है वहाँ पे भी किस तरह से चलाया जा रहा है वो एक अलग सवाल है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का होना, उनको मजबूत बनाना, उनको खुदमुख्तार बनाना और उनके इलेक्शन को करवाना, ये हमारा मुतालबा है। और हम पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं वो फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तरफ जाएं और उसमें जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर मुशावरत के साथ अमेंडमेंट करें और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके बाद फिर इन इदारों को इलेक्शन के बाद उनको मुख्तारी दी जाए, आईनी भी, सियासी भी और पार्टी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। वो मकामी इदारों के मुतलक नुमाइंदों से खारिज क्यों है? यानी ये एक ऐसा सवाल है कि जो यानी अगर हम गौर करें तमाम सियासी जमातें वैसे बहुत मुखालिफ हैं नजरियात के हिसाब में, मगर इस नुक्ते पे ऐसा ही इतना इत्तेफाक है कि जैसे वो बरसकार आते हैं ये लोकल नुमाइंदों को यानी मकामी हुकूमतों को घर भेज के हीले बहानों के जरिए कानून साजी नए तरीकों से करना शुरू कर देते हैं। सलमान साहब ने, बुशरा साहब ने जैसे जिक्र किया कि आखिरी इंतखाबात 2015 में हुई और हम कहते हैं कि पंजाब आबादी में बड़ा सूबा है, दूसरे हिसाबों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा आगे है, मगर हम गौर करें बाकी 3 सूबे जिन्होंने अपनी मुकामी हुकूमतें कायम कर ली वो फंक्शनल है। पंजाब में हुकूमत ये जरूर कह रहा है कि नाम निहाद कानून साजी उन्होंने बड़ी की है कि हर हुकूमत आती है वो अपना नया कानून लेके आती है, और अभी ये नई हुकूमत है उसने भी यही काम शुरू किया है कि 20 नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है और उसने वो मीटिंग शुरू कर दी है। हमारा फौरी मुतालबा ये है कि जैसे तैसे करके इंतखाबात का ऐलान किया जाए, मुकामी हुकूमतें कायम हो जाए और फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी कानून साजी करें, यानी मुंतखब नुमाइंदे फौरन आ जाए। बहुत
बहुत शुक्रिया। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि गुज़श्ता 9 साल से पंजाब में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन नहीं हुए, और जबकि बाकी 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है पंजाब में? इस सिलसिले में इस वजह से लोकल गवर्नमेंट के हमारे अदारे सफ़र कर रहे हैं, उनके पास फंड नहीं है और उनके फंक्शन जो रुके हुए हैं, जिसकी वजह से बाज़ अदारे ऐसे भी हैं जिनके बिजली के कनेक्शन तक काटे हुए हैं और उनको जो पानी का और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में हमारा फौरी तौर पर ये मुतालबा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए, ताकि हमारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे जो है तो फंक्शन हो सकें। इसी तरह तो पूरे इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरा एक बात बड़ी अहमियत की अमल है कि जैसे जिस तरह अब बारिशों की परीक्षण हो रही है, जिस तरह की अफवाह इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना जा रहा है, या जिससे पहले भी आती रही है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे पहले जब लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदान मौजूद थे, तो उन्होंने जिस तरह से इस तरह की चीज़ों को टैकल किया था, उस तरह सफाई कुत्तों या नेशनल हुकूमतों से नहीं हो रहा है। अगर ये बुकें होती हैं, अगर ये लोग मौजूद होते हैं, तो बड़े आराम से और लोगों के मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। तरह से हमारे सीनियर दोस्त साजिद साहब ने, जाहिद साहब ने, मिशा और सलमान साहब ने बड़े डिटेल में बात कर ली है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाए, ताकि जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पर रिजॉल्व हो सके। और इसी तरह से क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ग्रासरूट लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अप्रूव बना रहे होते हैं, उनकी भी यही है कि जब तक ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी है, तो हम लोग उसके ऊपर ये चाह रहे हैं कि इसकी जो जितनी मीटिंग्स हो रही है, जितनी प्रोसीडिंग हो रही है, उसको किसी तरीके पर एंड होना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है जल्द से जल्द। थैंक यू। तालबा भी यही है कि लोकल गवर्नमेंट के जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, ताकि मिसाइल भी उसी तरह से आता है, क्योंकि आबादी में ही सबसे बड़ा सूबा है, इसके उतना ही ज्यादा है जितनी आबादी है। तो हम सब समझते हैं कि जब तक हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं होंगे, हमारे मिसाइल हल नहीं होंगे। हम काउंसलर या डिस्ट्रिक्ट मेंबर तो मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन बहुत पहले हुए थे, हमारे पास तैयार आते हैं, लेकिन काम हम वैसे अभी तक कर रहे हैं जैसे कि हम तब कर रहे हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो ताकि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें।